So good morning all students. Welcome to this political science section class. And today we are going to start a new chapter of your the book Constitution, Indian Constitution at Work, Chapter 5, Legislature. It is very interesting chapter and it is very practical chapter also, not theoretical. You have to develop this understanding to understand this chapter. No ratification is required. You have to understand the basic concept of this chapter. And practically, you see all the phenomena, see the institution of this legislature in your country. Because you are a student of political science, and it's very necessary that you should know how the laws and law, the formation of the laws, implementation of the laws, how the budget is passed, and new types of laws are framing and implementing. It's very necessary to know. So you have to be aware now that what's going on in the houses, in parliament, in our country, and all that. So that's why today the chapter is very interesting. I love this chapter. It's very good chapter because it's very practical here. Theory is not here because you see theory means the theory is there, but you see that this theory is according to the you can practically see the thing. So let's start today's chapter, legislature. Legislature, as you know in Hindi, it is called a व्यवस्थापिका. व्यवस्थापिका जो व्यवस्था बनाती है, ठीक है, जो लॉ एंड ऑर्डर रखती है. इट इज कॉल्ड अ लेजिस्लेचर. अब हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे कि लेजिस्लेचर होता क्या है. इन योर क्लास 10th यू ऑलरेडी रेड दैट ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स. These are horizontal division of power. This is one. First is legislature, then executive, then judiciary. ठीक है, क्लास 10th में पढ़ा था ना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पावर डिवीजन. तो हॉरिजॉन्टली पावर डिवीजन है यहाँ पर लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी. तो आज वहां तक हमने ये पढ़ा था लेजिस्लेचर इज अ लॉ मेकिंग बॉडी. ठीक है, यहीं तक हमने इस चीज को समझा था कि पार्ट्स को कैसे डिवाइड किया गया, लेजिस्लेचर में दिया गया. तो लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, बस इतना बना. अब हम लेजिस्लेचर के बारे में बहुत डिटेल, बहुत ब्रॉडली इस चीज को डिस्कस करेंगे. देखिए लेजिस्लेचर जो है ना, सबसे पहले मैंने इसलिए क्वेश्चन ये लिखा है व्हाट इज द लेजिस्लेचर. अगर आपको पूछें कि लेजिस्लेचर क्या है तो क्या होगा. The legislature is, we can say that an institution where the group of people they are appointed and some are elected by the country's population. और अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं तो ये जो वर्ड है इसको अगर हमें समझना है तो ये एक लैटिन लैंग्वेज है. ये लेजिस्लेचर जो है ये वर्ड एक लैटिन वर्ड से बना है. उस लैटिन लैंग्वेज में इसको मतलब होता है द मेंबर्स हु मेक द लॉज. लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, जो कानून बनाता है. तो हमारा माइंड जो हो गया है वो इसके चारों तरफ घूम रहा है लेजिस्लेचर के कि ये लॉ बनाता है. ठीक है, अब हमने इसको थोड़ा सा और डिटेल किया कि लेजिस्लेचर है क्या. तो हमने कहा कि एक ग्रुप ऑफ पीपल हु आर अपॉइंटेड एंड इलेक्टेड बाय द कंट्रीज पॉपुलेशन हु वोट फॉर न्यू लॉज. New laws that are framed in parliament, that are framed in legislature. These laws are framed by the members of the parliament. First thing is this. Just legislature and parliament, the same thing. No difference is there. Whenever we talk about legislature, what it means parliament. Okay. अब एक क्वेश्चन ये आता है जो कि हमने पहले भी किया है अपनी अर्लियर क्लासेस में. पार्लियामेंट को एज अ कंप्राइज, हु फॉर्म पार्लियामेंट. पार्लियामेंट किन से लोगों से मिलकर बना है. तो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी क्लास 11 के बच्चों से, बिकॉज यू हैव रिसेंटली पास्ड आउट योर क्लास 10. प्लीज रेज योर हैंड कि पार्लियामेंट जो है वो किस तरह से कंप्राइज हुआ है. हु कंप्राइज पार्लियामेंट, name the members, name the institution through this the parliament is formed. Please raise your hand. Yes, Naresh. मैंने एक बार
क्वेश्चन वापिस से बोलना। क्वेश्चन है पार्लियामेंट किससे मिलकर बनी है? जल्दी जवाब दो। पार्लियामेंट हाँ, वो तो लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा एंड राज्यसभा, दिस इज करेक्ट। अभी और कुछ बाकी है इसमें? यस राहुल, राहुल, you have raised your hand. Okay, no problem is there. Yeah, everybody know answer. Maybe it's possible कि आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया हो। नरेश ने आंसर दिया लोकसभा और राज्यसभा, दिस इज करेक्ट। But one important person, very eminent, very renowned personality of the country, we can say the head of the state, who is this? President. तो हमने कहा पार्लियामेंट किससे मिलकर बना है? राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। इज इट क्लियर? चलिए अब आगे बात करते हैं। हमें सबसे पहले इन चीजों को बेसिकली समझना होगा, उसके बाद समझते हैं व्हाई वी नीड पार्लियामेंट इन आवर कंट्री एंड ऑल दैट। तो हमने बोला ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट इज कंप्राइज ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। Now, once again we move to the our legislature. This is parliament. So this parliament, it is comprised of the members of Lok Sabha, Rajya Sabha, as well as the president, who is the executive as well as legislative body. President, it is executive as well as legislative bodies. That's why we can say that he is the president that represents the Lok Sabha and Rajya Sabha both houses. What is the reason behind it? I also tell you later कि जब हम प्रेसिडेंट को थोड़ा डिस्कस करेंगे तब बताती हूँ मैं आपको। अब हमने ये मान लिया कि राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में मेंबर्स होते हैं which are elected, which are some are appointed, some are directly, some are indirectly. Okay, so that's why these are who elected them. Now the question is the members, I am just talking about the members of Rajya Sabha, Lok Sabha. The question arises here, who appointed them? कौन चुनता है? We the people. All the people who are the citizen of a country have the right to choose the government by casting our vote. Clear? चलिए आगे अपन चीज को और डिस्कस करते हैं। जो लेजिस्लेटिव ऑफ यूनियन है, यूनियन इट मींस सेंटर, जो लेजिस्लेटिव ऑफ यूनियन है इट इज कॉल्ड द पार्लियामेंट। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग very basic things here. I am not discussing what is given in your content. Abhi gradually we will shift there, but first of all we have to understand legislature, parliament. तो जहां पर हम यूनियन की बात करते हैं, लेजिस्लेटिव ऑफ यूनियन, इट मीन्स सेंटर, देयर इज द पार्लियामेंट. Then when we talk about the legislative of union, it is the parliament. On the other hand, if we say that on the state level this is a state legislative assembly. So this is, we know that parliament, it is comprised of two houses also, bicameral and unicameral. Two houses are there. So bicameral means Rajya Sabha and Lok Sabha. Parliament की दो, अगर हम पार्लियामेंट जो है इट हैज टू हाउसेस. अगर हम बोलते हैं बाय कैमरल, इट मीन बाय का मतलब टू हाउसेस है, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा. और जब हम यूनिकैमरल की बात करते हैं तो सिंगल हाउस की बात करते हैं, वहां या तो लोकसभा, मोस्टली क्या होगा, लोकसभा. और हम जो यूनिकैमरल जो होगा, देखो हम यहाँ पर सेंटर की बात कर रहे थे, राज्यसभा लोकसभा दोनों है. जब हम स्टेट की बात करेंगे वहां पर भी बायकैमरल और यूनिकैमरल होता है. स्टेट में बायकैमरल यूनिकैमरल कैसे होता है, देखो ये तो हो गया सेंटर की बात. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू कि जहां सेंटर में पार्लियामेंट है, इंडिया की बात कर रहे हैं, वो बायकैमरल है, लेजिस्लेटिव असेंबली.
जो है वो बाइकैमरल वो कैसे है, दैट इज द लोकसभा एंड राज्यसभा। अब वापस स्टेट में शिफ्ट हो जाते हैं। स्टेट में क्या होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जो स्टेट के लिए लॉ बनाती है। अब स्टेट जो अगर बाइकैमरल है तो यहाँ पर क्या होगा, एक हो गई विधानसभा और एक होगी विधान परिषद। This is called the legislative assembly. This is called the legislative council. और legislative council legislative assembly से छोटी होती है, इसका साइज, उसमें मेंबर्स क्या होते हैं, कम होते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बात करते हैं। अभी हम लेजिस्लेचर को ही समझ रहे हैं, आगे कुछ नहीं किया अभी हमने। तो हमने ये बात की कि जो यूनियन है लेजिस्लेटिव, जो यूनियन है इट इज कॉल्ड अ पार्लियामेंट, ठीक है। और इंडिया की जो पार्लियामेंट है इट इज एब्सोल्युटली लेजिस्लेटिव बॉडी एंड द मेंबर्स हु आर द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर दे आर कॉल्ड द लेजिस्लेटर्स। जो मेंबर्स है लेजिस्लेचर्स के उन्हें क्या कहते हैं, लेजिस्लेटर। और अभी मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट के 2 हाउसेस, दिस इज क्लियर। नाउ वी शिफ्ट टू द कि पार्लियामेंट क्या है, लेजिस्लेचर क्या है, हमें ये समझ में आया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, दिस इज द क्वेश्चन दिस इज आस्किंग इन योर टेक्स्ट बुक। जस्ट यू गिव मी आंसर, पार्लियामेंट क्या है, व्हाट इज द लेजिस्लेचर, इट इज क्लियर टू ऑल। यस अंकिता, नहीं पीयूष होगा ये बच्चा, हाँ जी पीयूष। We need parliament for making. Yes, ma'am, we need parliament for making laws. Yes. You want to ask any question related to this? I will explain everything. First of all, you tell me the legislature that I explained you basic concept of legislature. समझ में आया? Please raise your hand. तब हम आगे बढ़ेंगे इसके। Okay. So now we move to the, हमें बेसिक ये चीज समझ में आया कि लेजिस्लेचर क्या है, पार्लियामेंट क्या है। अभी और डिटेल करेंगे। अब हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्या है। तो सीधी सी बात है, द फंक्शंस व्हिच आर परफॉर्म्ड बाय द पार्लियामेंट, दैट्स व्हाई रिक्वायर पार्लियामेंट। दिस इज वेरी सिंपल आंसर, बट they have to know what functions are performed by the parliament. This is very necessary because everybody know that I told you that absolute body of the country for the framing laws, it is legislature, and legislature is comprised of Lok Sabha and Rajya Sabha. In the other words, it is the parliament which is comprised of 2 houses, this is Lok Sabha and Rajya Sabha. It is not only the, it is one of the, what is written there, that law making, yeah, law ko banana, to make the law, it is the one of the important and most important function of the legislator. It means legislature में और भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे functions होते हैं। Whenever you say that any bill that is introduced in parliament, it is debated. We can say कि बहुत डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, फिर उसकी वोटिंग होती है, तब अगर वो पास होता है तो वो बिल बन जाता है, एक लॉ बन जाता है। फाइनेंशियल रिलेटेड फंक्शन जो कि बजट से रिलेटेड, आपको मालूम है कि पार्लियामेंट में ही बजट पास होता है। तो नंबर ऑफ फंक्शंस आर दैट आर परफॉर्म, वी विल डू थॉरली, आई जस्ट गिविंग यू सुपरफिशियल आइडिया ऑफ द फंक्शंस व्हिच आर परफॉर्म बाय पार्लियामेंट। Just imagine if parliament is not there in all the world, in whole the world, in all countries there is a parliament. Names are Senate, Congress, National Assembly, different names are given to them. But parliament is always there for framing laws, to maintain the law and order, for the financial purposes, and also for to check the powers of the members of the parliament. So, deep meaning. You should have understanding, you develop your understanding to understand all these concepts. So that's why do we need parliament in a country? First of all, we just come to know because of performing
important functions here. My Karthik Vera. Yes, Karthik. You want to ask anything? No, ma'am. Okay. My आपको ऑडियो क्लियर आ रही है? Clear? Yes, ma'am. Okay. Everybody, please raise your hand if audio is clear. Okay. Thank you so much. चलिए. अब हमारे सामने जो क्वेश्चन आ रहा है वो यही है कि why do we need parliament? तो हमें एक चीज पता चल गई कि the functions which are performed by parliament, that's why we require. Now, what type of functions are there? Just wait a minute. Some problems in this Bluetooth. So once again, time to the point here कि जहां पर हमने असेंबली, कहां पर पार्लियामेंट में हमने जहां मीटिंग देखी राज्यसभा लोकसभा की, कि दोनों में क्या होता है, मेंबर्स होते हैं. दोनों मेंबर्स एक दूसरे पे क्या करते हैं कि जो गवर्निंग पार्टी होती है वो अपने फेवर में बात करेगी और जो अपोजिंग पार्टी होगी वो गवर्निंग पार्टी को क्रिटिसाइज करेगी. क्रिटिसाइजेशन इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी फॉर द बेस्ट आउटकम फॉर द पीपल. तो इन दिस वे वी कम टू नो कि पार्लियामेंट नहीं होता तो ये जो बेसिक प्लेटफॉर्म है वो कहाँ मिलता, पब्लिक डिबेट कैसे होती, डिस्कशन कैसे होता. समटाइम इट फील्स, कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होते हैं, द मिनिस्टर्स हु आर द ministers who are chosen by the prime minister for their they just give them the portfolio, different portfolios are there, these are called the cabinet ministers. कैबिनेट मिनिस्टर्स जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर्स हो गए, ये पोर्टफोलियो वो होता है जिनको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दिया जाता है. ये मिनिस्टर्स क्या होते हैं, इनकी जो नंबर होता है वो कम होता है बट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं फॉर टेकिंग डिसीजन related to their department. In even for the national level decisions are taken by them. Sometimes it feels कि parliament जो है इसमें ये मिनिस्टर्स जो है ये बहुत एमिनेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए धीरे धीरे जो पार्लियामेंट जितना पावरफुल होना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा. इट फील्स बाय द पीपल बट व्हाट इज द एक्चुअलिटी हियर. लेकिन सच्चाई क्या है कि आपको मालूम है कि जब तक कोई भी पार्टी, जब इलेक्शन होता है, जो मेजोरिटी पार्टी होती है, जब तक वो लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर देती तब तक वो सरकार नहीं बना सकती, गवर्नमेंट नहीं बना सकती. वन थिंग. सेकेंड थिंग कि वो एक पूरी तरह से एक, चाहे कितना स्ट्रॉन्ग लीडर क्यों ना हो, चाहे कितना ही उसकी मिनिस्टर्स स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, उन्हें पार्लियामेंट को फेस करना ही होता है. क्रिटिसाइजेशन भी होता है, उनसे क्वेश्चन आवर में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं रिलेटेड टू देयर डिपार्टमेंट. और कई बार आपने देखा होगा कि इतना क्रिटिसाइजेशन होता है मिनिस्टर्स के वर्क का कि जैसे कई बार एक जो रेलवे कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई और रीजंस हो गए तो उन मिनिस्टर्स को क्या रिजाइन तक करना पड़ा है बिकॉज ऑफ द criticization by the opposition party as well as the other members. So we see where it happened, all the procedures, it is in parliament. So why do we need parliament? So all these things we come to know that because of the functions, because of the, you can say it gives the platform to all the members, it gives the platform to the for the public debate. और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम इंडिया गवर्नमेंट के ऑर्गन की बात करें, जिन ऑर्गन में हमने ये कहा था कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, तो सबसे जो बिगेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑर्गन है वो लेजिस्लेचर, क्योंकि लेजिस्लेचर में क्या है, लोकसभा के भी मेंबर्स हो गए जो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. राज्यसभा मेंबर्स, दीज आर इलेक्टेड, द राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. मेंबर्स और जो ये एमएलए हैं वो हम चुनते हैं, फिर ये एमएलए राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं. तो अब आप मुझे बताइए कि पार्लियामेंट जो है वो अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है जिसके बिना हम सोच नहीं सकते, कैन नॉट इमेजिन कि हमारे देश की जो है किस तरह से व्यवस्था होगी, किस देश, हमारे देश का जो लॉ एंड ऑर्डर वो कैसे मेंटेन होगा, पॉलिसीज कैसे बनेगी, इन ऑल दैट.
ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हुआ कि पार्लियामेंट क्यों जरूरी है, पार्लियामेंट क्या है, तो हमें दो क्वेश्चन क्लियर हुए। व्हाट इज पार्लियामेंट? इट इज अ इलेक्टेड बॉडी और इलेक्टेड सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट choosing by the people. The government is choosing by the people, where the people also participated in taking the decision and uphold the democracy. अगर पूछे व्हाट इज द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट ये है जहां पर हम लोग सरकार को चुनते हैं और उस डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर, क्या मैं और आप डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कर रहे हैं। आज हम जो है, अगर कहीं पर टेररिस्ट अटैक हो गया और हम कह रहे हैं कि उसका सर्जिकल स्ट्राइक करें, कि हम जम्मू कश्मीर में जाके और ये वहां पर हम लोग वहां आर्मी को ऑर्डर दे दें कि वहां पर आप जो है ये स्ट्राइक करें, सर्जिकल स्ट्राइक करें या अटैक करें, क्या आप और मैं ऑर्डर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बट वी से दैट वी पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड अपहोल्ड द डेमोक्रेसी। हाउ? बाय कास्टिंग आवर वोट। हमारी पावर वोट तक है, हमारी पावर जो है वो वोट तक है, ये पावर कोई कम पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आज रूलिंग गवर्नमेंट है, मे बी पॉसिबल कि हम उसको नेक्स्ट इलेक्शन में हम नहीं इलेक्ट करें, मे बी पॉसिबल जो मिनिस्टर्स जो हैं अभी कैबिनेट मिनिस्टर्स बन के आए हैं उनको चूज किया गया, नेक्स्ट में नहीं आए वो। तो इट मीन्स क्या, हमने किसको चुना? हमने अपनी लेजिस्लेचर को चुना। पावरफुल कौन है? लेजिस्लेचर है। पीपल कैसे पावरफुल है? बिकॉज इट इज द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना है, दे रिप्रेजेंट अस इन पार्लियामेंट। ऑन बिहाफ ऑफ अस द डिस्कशन एंड डिबेट्स आर हेल्ड देयर for the welfare of the nation, for welfare of the people. So I hope the two questions are clear to you, that what is parliament, why do we need parliament. Now the next question is, why do we need bicameral legislature. चलिए अब इसको थोड़ा सा पहले समझेंगे, bicameral होता क्या है, ये थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। टू हाउसेस मैंने अभी बताया, आपको क्लियर हो चुका होगा। डायरेक्टली बात कर रही हूं मैं, अभी क्लियर कर चुकी हूँ लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। अब लोकसभा जो है ये हाउस ऑफ द पीपल है, और राज्यसभा जो है वो स्टेट असेंबली, स्टेट जो काउंसिल हो वो भी कह सकते हैं उनको, है ना। और क्या कह सकते हैं, ये स्टेट असेंबली से उससे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स। हालांकि ये टॉपिक बहुत थॉरली आपकी बुक में दिया हुआ है कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है। तो लोकसभा एकदम पर्टिकुलर हम चीज पे बात करते हैं, दिस इज द हाउस ऑफ द पीपल। व्हाई? बिकॉज इन दिस द मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। जैसे कि एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, दीज आर, ठीक है। दिस इज दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द हाउस ऑफ द पीपल। ऑन द अदर हैंड राज्यसभा, राज्यसभा इट इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ काउंसिल्स ऑफ स्टेट्स। काउंसिल क्या होती है? जो असेंबलीज होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट्स में भी है, ठीक है। तो ये जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन है? राज्यसभा। राज्यसभा डायरेक्टली इलेक्टेड जो है वो बॉडी नहीं है, इसलिए इसको हाउस ऑफ द पीपल नहीं कहते। ये जो राज्यसभा है इसको इलेक्ट कौन करता है? क्वेश्चन ये है। राज्यसभा आपको मालूम है कि हर बार जो इलेक्शन होते हैं, ठीक है, उन इलेक्शंस में आपने देखा होगा कि रीजन टू रीजन इलेक्शन होते हैं। बात कर लेते हैं, देख सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं इंडिया के 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बात की राजस्थान स्टेट। अब
इसमें जब इलेक्शन होता है, ठीक है, रीजन टू रीजन होता है। रीजन किसको बोलते हैं? रीजन हम स्टेट को ही बोलते हैं। अब उस स्टेट में कौन से चुनाव होते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव होते हैं, उसे कहते हैं विधानसभा के चुनाव। हर विधानसभा के चुनाव अलग अलग टाइम पर होते हैं, हर स्टेट के विधानसभा के चुनाव। आपने देखा होगा अभी महाराष्ट्र के हुए, मध्य प्रदेश के हुए, हर टाइम पे अलग अलग होता है, क्योंकि उसका भी रीजन है। उसका क्या रीजन है कि हर विधानसभा का जो अपॉइंटमेंट का है और वर्किंग का जो शेड्यूल्ड है वो अलग अलग होता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो राज्यसभा है ना, राज्यसभा, जैसे मैंने आपको भी बताया कि राज्यसभा जो है कभी डिसॉल्व नहीं होती, एक परमानेंट हाउस है। ऐसे ही राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद होती है। जब यहाँ पर इलेक्शन होते हैं तब हम क्या चुनते हैं? सीएम। देखो, चीजों को समझने की कोशिश करें। जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो हम चुनते हैं पीएम एंड मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स। जब राज्यसभा विधानसभा के चुनाव होते हैं तो हम सीएम और मिनिस्टर्स चुनते हैं। अब आपको पता है रीजनल लेवल पे, रीजनल होता है स्मॉल लेवल पे, जो है विधायक चुनते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। इनको क्या बोलते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इनको बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इन बीकानेर के अंदर भी इलेक्शन हुए थे जिसमें आपको सिद्धि कुमारी पता है विधायक है। तो ये जो मेंबर है एमएलए बीजेपी की वो है, तो ये जो एमएलए है ये क्या करते हैं? ये राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं इनडायरेक्टली। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, प्रपोर्शन के अंदर ही उनका पॉपुलेशन की जो प्रपोर्शन होती है उस हिसाब से ही राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन होता है। तो ये एक सिस्टम है हमारे यहाँ पर राज्यसभा के मेंबर्स को चुनने का और लोकसभा के। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है कि हमें जो इंडिया में है वो मोस्टली जो है, अगर हम बात करें मोस्टली क्या है, स्टेट्स के अंदर यूनिकैमरल है, बाकी सेंटर पे तो क्या है, बायकैमरल ही है हमारे। बायकैमरल क्यों है? क्वेश्चन ये, व्हाई इंडिया अडॉप्टेड अ बायकैमरल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर इन इंडिया। तो बात करते हैं, हमने अगर राज्यसभा लोकसभा को समझ लिया तो आगे का क्वेश्चन ये बनता है कि क्यों जरूरत है। बिकॉज यू नो दैट इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, number of people are there, large populated country, society is very large, different opinions, different ideas, they could be clashes because of many reasons. That's why to give the accommodation to all the section of the people, it required two houses. Like you know that India is divided in different regions, diversity, language, culture and all that. So it's very necessary because we believe in democracy. Just go back. We believe in democracy where we say the people should be equally participated, where the people should be given equality. When we believe in this, what we require? Equal representation. I think the time is going to be over now. बीच में ही बात रह जाएगी, इससे पहले मैं ही खत्म करती हूँ इस क्लास को। कल जो है means on Monday we will discuss all the things thoroughly and conceptual things. I'll just tell you कि क्यों ये चीजें होती है. I hope that you today you enjoy the class और सारी चीजें आपको समझ में आई होगी. Till then, have a good day.